بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال بدستور دیگر گوں انہیں غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری طریقوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبر کے ذریعے، تسلط کے ذریعے اور پولیس گردی کے ذریعے، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے، جعلی انتخابات کے ذریعے، لیکن معاملات سنبھالے نہیں جا رہے۔ اور اس وقت بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے راضی کر لیا جائے اور عمران خان صاحب کو کچھ باتیں منوا کر انہیں ریلیز کر دیا جائے۔ یہ بہت ہی مستند اطلاعات موجود ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی خبر دوں گا، کیونکہ ہمارے پاس آج ایک انفارمیشن ایک سورس سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا کیس تھا جی القادر ٹرسٹ اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پہ میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی۔ اور میڈیا کے ساتھ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب حشاش بشاش A1 تھے اور انہوں نے بلو کلر کی پہنی ہوئی تھی شرٹ کی اور پولو کی، اور اس کے بعد ٹراؤزر تھا جی، اور اس کے بعد جوگر تھے اور فٹ تھے اور زبردست تھے اور مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ گپ شپ لگائی اور کسی قسم کی ان کو ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ اور ان کی گپ شپ ہوئی کافی تفصیلی، مختلف جو ان کے فیملی ممبرز گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، اور میڈیا نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی، بریک ہوئی، عدالت میں ایک بریک ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، اور وقفے کے دوران جب میڈیا پرسنز ان کے پاس گئے، کیونکہ لکڑی کی دیواریں ہٹا دی گئیں، شیشے ہٹا دیے گئے اور اب اوپن کورٹ کا ماحول ہے، لیکن میڈیا کو کافی دور بٹھایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بریک ہوئی تو بریک میں جو میڈیا پرسنز ہیں وہ گئے عمران خان صاحب کی طرف، لیکن اسی دوران پولیس آ گئی درمیان میں اور پولیس نے میڈیا پرسنز کو وہاں سے نکال دیا اور گفتگو نہیں کرنے دی، اور عمران خان صاحب مسکراتے رہے اور انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، دوبارہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بریک ختم ہوئی، بریک ختم ہونے کے بعد پھر عمران خان صاحب بھی جج صاحب سے مخاطب ہوئے اور میڈیا پرسنز بھی جو ایک آدھ رہ گئے تھے وہ بھی، کیونکہ ان کو جیل سے نکال دیا گیا تھا، میڈیا پرسنز کو کمرہ عدالت سے بھی اور جیل سے بھی، اور وہی SOPs جو کہ لکھ کے لگائے ہوئے تھے ان کو انہی SOPs پر عمل کیا گیا، اور میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب سے مخاطب نہیں ہونا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب پہ تو ان کا زور نہیں چلتا، لیکن میڈیا پرسنز پہ ان کا چلا اور تمام رپورٹرز کو جیل سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب پتہ چلا ایک آدھ بندہ رہ گیا ہوگا، اور انہوں نے پھر جج صاحب کو بتایا کہ جی میڈیا تو نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میڈیا سارا نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جج صاحب جو صاحب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا، انہوں نے جیل حکام کو دوبارہ آرڈر کیا کہ سارے میڈیا پرسنز کو واپس بلایا جائے اور کسی کو بھی باہر نہیں رکھنا، لیکن پھر بھی کچھ جرنلسٹوں کو باہر روکا نہیں بلایا گیا اور کچھ کو اندر ایکسس دے دی گئی۔ جن کو نہیں بلایا گیا ان میں سمیع ابراہیم اور کچھ اور جرنلسٹ ہیں جو کہ زیادہ گفتگو کرتے تھے، اس لیے ان کو باہر ہی رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی اور عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ اصل میں یہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، یہ شکست خوردہ ہیں، اور شکست خوردہ لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس لیے عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو بھی ہم جیتے اور 21 اپریل کا الیکشن بھی ہم جیتے، اور 8 فروری کا بھی الیکشن انہوں نے فری اینڈ فیئر نتیجہ نہیں دیا اور 21 اپریل کا بھی نہیں دیا، اور ان کا خیال تھا کہ ملک میں ہم جنگل کا قانون لگا کے یہ ہم پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہے یہ ہم جیت لیں گے، کیونکہ اب تو پولیس بھی ہماری، انتظامیہ بھی ہماری، حکومت بھی ہماری، اب تو درمیان میں کوئی تھوڑا سا بہت شرم و حیا تھی وہ بھی نہیں رہی۔ لیکن اس بار بھی انہوں نے کہا کہ پولیس کو استعمال کیا گیا، انتظامیہ کو استعمال کیا گیا، ٹھپے لگائے گئے اور ٹھپے لگا لگا کے الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جیت لیا، اور جو جس طریقے سے 9 فروری کے نتائج جعلی اور فریب اور دھوکے پہ ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا 21 اپریل کا الیکشن بھی اسی طرح ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا اور وہاں پہ نہ ہی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا،
نہ ہی किसी पे पाबंदी लगाई, ना ही नतीजा तब्दील हुआ, ना ही पॉलिश गर्दी हुई और ना ही कोई ठप्पे लगाने के वाकयात हुए। तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन साफ शफाफ करवाए गए हमने, और इन्होंने जो पंजाब में करवाए वो सारी दुनिया को पता चल गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत ना कल थी ना आज है, और जब तक ये रजीम मौजूद है जमहूरियत का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और ये 8 फरवरी से डरे हुए थे लोग, और इसलिए 21 अप्रैल को इन्होंने पहले से बंदोबस्त किए हुए थे जाली इंतखाबात के, जाली इलेक्शन के, तो वो उन्होंने कर दिए। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि खास तौर पे उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशंस पड़ी हैं, वो अभी तक नहीं की जा रही, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा एक बात जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो है वो डिले किए गए थे, अक्टूबर से फरवरी तक ले जाए गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सके, और पाकिस्तान को डिमोलिश करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए उन्होंने कहा कि ये सारा खेल खेला गया था। इलेक्शन डिले किए गए, नाजायज़ गैर कानूनी निगरान हुकूमतें उनको मुसल्लत किया गया, और इसके बावजूद और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी हमारी पेटिशन नहीं ले रहा, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रश होने का, डिमोलिश होने का इंतज़ार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश हो जाए, तो उसके बाद फिर हम भी इंसाफ दें। यानी कि काजी फाइज ईसा साहब से वो आज फिर मुखातब हुए, और उन्होंने बताया कि जनाब इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्रश नहीं होना। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उन तक आवाज़ हमारी पहुंच गई, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बाशऊर हो चुके हैं, और वो अब किसी फ्रेब में नहीं आ रहे, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी जेल में इसीलिए रखा हुआ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरी अहलिया को, मेरी बहनों को इसलिए जेल में रखा हुआ है कि वो भी इनके काबू में नहीं आ रहे। और जो बात मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी थोड़ी सी तफसील, लेकिन पहले जरा इमरान खान साहब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा जी कि मरीम साहिबा इलेक्शन में सियासत में हैं, मोहतरमा बेनज़ीर सियासत में थी, तो मेरी ना अहलिया सियासत में है, ना ही मेरी बहनें सियासत में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको भी नहीं बख्शा गया, और मुझे तोड़ने के लिए, उन्होंने कहा मुझे तोड़ने के लिए इन्होंने मेरी अहलिया को जेल में डाला, मेरी जो बहनें हैं उनके खिलाफ बेबुनियाद झूठे मुकदमात कायम किए, और उनको भी गिरफ्तारियों की धमकियां दी गई कि हम आपको जेल में डाल देंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अब मामला जो है वो खौफ से आगे निकल चुका है, बुत के खौफ जो है वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मौजूदा सेटअप जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है, और मौजूदा सेटअप के होते हुए ना ही हुकूमत मुस्तहकम होगी, ना जमहूरियत मुस्तहकम होगी, और ना ही ये सारा निज़ाम चल सकेगा। और जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के अवाम के हकीकी नुमाइंदों को आप नहीं लेके आते, उस वक्त तक कोई बेहतरी की चांस नहीं है। जितना भी ये कोशिश कर लें, करके देख लें, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि अदलिया पर जो है एतमाद वो उठता जा रहा है, और अदलिया पर एतमाद इसलिए उठ रहा है कि वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा, और जजेस खत लिख रहे हैं, अदलिया के अंदर से इत्तलाहत आ रही हैं, लेकिन अब उस पर भी जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं वो कोई हिलजुल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की, ख़ास तौर पे क्योंकि पहली दफ़ा इमरान खान साहब से मीडिया पर्सन्स की गुफ्तगू हुई थी, तो जो बात हुई सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, तो उन्होंने कहा जी सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए हमारे दौर में OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, लिहाजा सऊदी अरब के साथ जो शेर अफजल मरवा साहब के बैग के पस मंज़र में गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऐसी कोई बात नहीं कि सऊदी अरब के साथ हमारे, या सऊदी अरब की क़यादत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ताल्लुकात कशीदा हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, और सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, और वहाँ से किसी ऐसी एडवर्सिटी की उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है, मुल्कों के ताल्लुकात हैं, और उन्होंने कहा कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। और उसके बाद अब आते हैं जी आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है बुशरा बीबी। रात उनको जेल में, वो अडियाला जेल नहीं सॉरी बनीगाला को सब जेल करार दिया हुआ है, वहाँ पे उनके साथ मामला हुआ, और उनकी तबीयत ख़राब हुई, तबीयत उनकी मुसलसल ख़राब हो रही है, और जो वो ठीक नहीं है, ये उनके फैमिली मेम्बर्स भी बता रहे हैं, उनकी बेटी भी बता रही हैं, उनकी बहनें भी बता रही हैं बुशरा बीबी की, क्योंकि इसके अलावा भी जो रिपोर्ट्स आई हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक भी डॉक्टर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर है 2 महीने पहले को अगर कोई केमिकल दिया गया है तो वो 2 महीने बाद इस तरह से नहीं आता, लेकिन
उनकी हिस्ट्री जो है बुशरा बीबी की, वो उससे पहले बिल्कुल फिट थी, कभी वो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला नहीं हुई, और ये कैद के बाद हुआ है सारा कुछ, जब से उनको बनीगाला में कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनको सरकारी खाना दिया जा रहा है, और उसके बाद ही ये सारे मसाइल हुए हैं। लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं कि अब ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, कोई ये नहीं है कि किसी अरे गरे ने बताया हो। सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी की फैमिली के साथ भी राब्ते किए गए, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी राब्ते किए जा रहे हैं, और आज मुख्तसर सी उनकी गुफ्तगू हुई है, और वहाँ पे हमारा भी एक नुमाइंदा, यानी कि हमारा भी एक सोर्स मौजूद था, और बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये आपको बता दूं कि जेल के अंदर आज जो सिचुएशन थी, वो जो खिड़कियां शीशे लगाए गए थे, शीशे की कैबन बनाई गई थी और लकड़ी की दीवारें खड़ी की गई थी, उनके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें फिट की गई थी बगिंग के लिए, ताकि जदीद तरीन आलात दिए गए थे, ताकि गुफ्तगू जो है वो सारी की सारी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जब बैठते थे करीब, तो उनकी जो गुफ्तगू है वो विस्परिंग करते हैं, वो भी उन्होंने कहा कि शायद उसको भी सुना जा सके, क्योंकि अंदर जो है मीडिया को तो निकाल दिया गया था। अब ये होता था कि ये फैमिली मेंबर आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं, ये उसके लिए किया गया था ये सारा कुछ, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं। तो वो इत्तफाकी बात है कि वो कोर्ट आर्डर से वो सारी चीज़ें डिमोलिश कर दी गई हैं, क्योंकि वो अदालत अदालत नहीं लगती थी, और जज साहब को एतमाद में नहीं लिया गया था। अब वो चीज़ें हो गई हैं, तो समझने वाले समझते हैं कि जितनी ज़्यादा ओपन जगह होगी और शोर ज़्यादा होगा, तो बगिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है, और इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो टीवी की आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, अगर कोई बात करनी हो बंद कमरे में भी, तो उसके बाद फिर वो बात करते हैं, या कोई म्यूज़िक लगा देते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो वो कैबन इसलिए ऐसा तख्लीक किया गया था, जो कोर्ट रूम है, कि जो अंदर बहुत ही कानों में बात करते हैं, या वो भी सुनी जा सके किसी भी तरीके से, फैमिली मेंबर्स के साथ इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू करते हैं और वकला के कानों में क्या बातें करते हैं, क्योंकि कोर्ट रूम ऐसा है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो वो तो हटा दिया गया। उसके बाद आज भी एक जगह पे जहाँ इमरान खान साहब खड़े होते हैं, वहाँ पे एक वो है लकड़ी का थोड़ा सा बना हुआ है, उसको छोड़ा हुआ है, वहाँ के अंदर माइक मौजूद है। ये कोर्ट रूम के अंदर की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे अभी भी माइक मौजूद है, और एक बंदे ने आज देख लिए, और उन्हें मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को बता दिया होगा कि जनाब एहतियात किया करें, आपने अपनी अहलिया के साथ या अपनी बहनों के साथ भी बात करनी है, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा एहतियात किया करें। तो सूरत हाल ये मैं बात बता रहा था कि बुशरा बीबी के अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके साथ राब्ते में हैं, उनको अप्रोच किया गया, और उनको अप्रोच करके ये कहा गया कि जी बुशरा बीबी को कहें कि वो रोल अदा करें, बिल्कुल ऐसा रोल अदा करें जैसे कल बेगम कुलसूम ने अदा किया था नवाज शरीफ के साथ मामला तय करने के लिए। तो इस तरह का रोल अदा करें और इमरान खान साहब से हमारी बातचीत करवाएं, और जो है इमरान खान साहब को राजी करें, अपना दबाव डालें, उनको समझाएं। तो ये काम ये किया जा रहा है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी के हैं, वो कहती हैं कि जी, और फिर एक और बात भी कही बुशरा बीबी को कि आप को हम यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करवा सकते हैं, और आप एक छोटी सी दरख्वास्त दे दें। उनके फैमिली मेम्बर्स को कहा गया कि आप दरख्वास्त दे दें, तो हम आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देते हैं, तो वहाँ पे बआसानी ये सारी गुफ्तगू हो सकेगी, और ये पैगाम रसानी का काम भी हो जाएगा। तो बुशरा बीबी ने ये इनकार कर दिया। हाँ, ये कुछ दिनों की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये काम ना पहले कभी किया, ना आइंदा होगा, और जिसने भी बात करनी है वो इमरान खान साहब से बराह रास्त करें, और इमरान खान साहब के फैसलों के बारे में हम इसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकते, और हम इमरान खान साहब के साथ हैं। आप इमरान खान को राज़ी कर लें, हम भी अज़ खुद राज़ी हो जाएंगे, बाकी सारे राज़ी हो जाएंगे। तो बुशरा बीबी ने ये ऑफ़र ठुकरा दी है, और उन्होंने ये कोई भी किसी किस्म की सालसी का किरदार अदा करने का भी, या पैगंबर बनने का, पैगाम रसा बनने का काम भी उन्होंने कह दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये, और इसी तरीके से अलीमा खान से भी, और मैं आपको बता दूं अलीमा खान और दीगर बहनों से भी बहुत राब्ते किए गए, और उनके साथ उनको एंगेज करने की कोशिश की गई, उनको एंगेज किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिल वक्त इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा बातें बताई तो वो हमारे जो सोर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, वो बेचारे, उनको आ जाएगा, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं
تو باقی انشاءاللہ پوری کی پوری تصویر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے یہ رابطے کیے گئے اور سب کچھ کیا گیا، لیکن عمران خان بھی نہیں مان رہے اور ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ کوئی بھی یہ ڈیل کر کے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں، یہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، اب بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کریں، ہماری فکر نہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔